Any doubt is there? No. So I will start with the topic of convection. What is convection? Convection is a mode of transfer of, yes, it is by the actual particles. Mode of transfer of heat. It generally takes place. मेरे पहले visibility है ना? चौक की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? Mode of transfer of heat. It generally takes place in liquids and gases, right? All the liquids and gases, remember, they are the poor conductors of the heat. They are poor conductors of the heat, but still they get heated by the actual movement of, particles, or you can say molecules. Okay? Particles लिख सकते हो, molecules, whatever you want to write, you can write. Right? The most common phenomenon, the most common natural phenomenon that takes place due to these is land breeze and sea breeze. तो मैं directly थोड़ा सा short सा diagram के form में बना रही हूँ. ठीक है? वो आपकी मर्जी है. I am just explaining it. Land to sea. एक और बना लेते हैं. That will clear all the points here. This is land and here it is sea. What happens? One phenomenon takes place at daytime. What happens in the day? The land gets heated faster. याद है? Land heated हाँ जी, land gets heated faster than the sea. Then what happens? The air present above the land, it rises up. ठीक है? Which creates a vacuum over this land area. To fill this empty space, to fill this vacuum space, the cool air from the sea rushes towards the land. Right? Cool air from the sea rushes towards the land and another vacuum is created over here. If the air moves towards this side, then a vacuum is created over here that is to be covered by this air. Okay? And the hot air, after reaching the height, it is shifted towards this side to cover the vacuum. This is a flow of current which you can, this is sea breeze. ये वाली जो cool air है, this is sea breeze. But this is a convectional current. This total movement of air, that is from sea to land, near the surface and in the upper part, this is called as convectional current. इन सबको हम क्या कहते हैं? Convectional current. During the day, we must follow convectional currents in form of sea breeze. However, during the night, opposite happens. Right? What happens during the night? You all very well know. Land gets cooler faster. Day के time में heated faster होती है and at night land gets cooler faster. If it is cold area, then naturally it is a hotter area. Sea hotter है, so air above the sea rises up. To fill this empty space, the air from the land moves towards the sea, which is called as land breeze. Clear? And to complete the vacuum spaces, currents will start moving, and these currents, they are to be called as convectional currents. That is actual movement of air particles. ठीक है?
आप सब छोटी क्लासेस से करते आए हो. आई डोंट थिंक आई नीड टू राइट दीज पॉइंट्स. लिख लोगे ना अपने आप इन केस अगर सी ब्रीज या लैंड ब्रीज की एक्सप्लेनेशन आगे कर लोगे ना सारे. एंड मस्ट गो फॉर अ स्मॉल डायग्राम, चाहे ऐसे ही छोटा सा डायग्राम बना देना, बीच में कन्वेक्शनल करंट्स लिख देना. कूल एयर फ्रॉम द सी रशेस टुवर्ड्स हियर एंड हॉट एयर राइजेस अबव. 2-3 पॉइंट्स जो आप शुरू से करते आ रहे हो, यू विल मेंशन दैट. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख देना हॉट एयर राइजेस अबव. हाँ जी, यहाँ पे मैंने डे लिख दिया, आप यहाँ पे सन ड्रॉ कर लेना. मैंने नाइट लिख दिया, आप स्टार्स ड्रॉ कर लेना. दैट इज योर चॉइस. ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है, जैसे मर्जी कर देना. हाँ, पर प्लीज एक्सप्लेन द प्रोसेस थॉरोली इफ इट कम्स इन एग्जाम. उसका पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. लैंड्स गेट हीटेड फास्टर और लैंड्स गेट कूल्ड फास्टर डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. यहां से शुरू करके आपने एंड तक जाना है टिल द कन्वेक्शनल करंट्स. हाँ जी, क्लियर हो गया सबको? ओके, दैट इज अबाउट कन्वेक्शन. एंड लास्ट इज रेडिएशन. व्हाट इज रेडिएशन? Mode of transfer of heat that does not require any medium. ठीक है, it is a mode of transfer of heat that does not require any medium, जिसमें कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता. The very good example of this is sun. Rays of the sun, they reach to earth after traveling even the vacuum spaces of the space. ठीक है, और इसमें सबसे अच्छी और सबसे मोस्ट कॉमन अंडरस्टैंड करने के लिए पॉपुलर एग्जांपल है सनरेज. हाउएवर, सनरेज के अलावा बच्चे देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स एंड देयर आर ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट रेडिएट. ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द हॉटर ऑब्जेक्ट्स दैट रेडिएट. आपकी बुक में दिया हुआ है, इफ यू सिट इन फ्रंट ऑफ हीटर you will get heat by the process of radiation also. If a hot bowl is kept, अगर एक hot bowl आप रख देते हो, right, it will radiate its energy. वो धीरे धीरे radiations lose करता है in the atmosphere and gets cooled. होते कि नहीं? Okay जी, so that is about the radiation. हाँ जी, सनरेज के मतलब, हाँ जी, मीडियम. मीडियम, मीडियम मीन्स कोई भी सब्सटेंस, आइदर इट इज एयर, वाटर और कोई भी चीज जिसमें पार्टिकल्स हो, ट्रांसफर करने के लिए कोई चीज हो. बोलो. सनरेज आपके मेटल को हीट कर रही है. अब देखो एक चीज है, इसमें रेडिएशंस भी मैटर करती हैं. कैसे? देखो, आपने मुझे कहा सनरेज दे हीट अ मेटल. ठीक है, इन्होंने मेटल को हीट किया. अब मेटल ने इट रिलीजेस हीट. आप ये कह रहे हो? देखो सीधी सी बात है, यहां से भी रेडिएशन है और यहां से भी रेडिएशन है. हाँ, अगर आप सपोज सनरेज, ये कोई मेटल का पीस है, दिस इज अ पीस ऑफ मेटल, और सनरेज सिर्फ इतने पीस में आ रही हैं और इस पीस को भी आप टच करते हो, दैट इज ऑल्सो हॉटर. दैट इज कंडक्शन ओवर हियर. यहाँ पे कंडक्शन है. और अगर आप उसके पास बैठे हो और आपको हीट फील हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ रेडिएशन, क्योंकि वो अपनी हीट लूज कर रहा है, जैसे हीटर आपको हीट कर रहा है. ठीक है, और कई बार इसमें कन्वेक्शन भी होती है. बेसिकली कन्वेक्शन और रेडिएशन में थोड़ी सी कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि कन्वेक्शन क्या है,
देखो आपकी बुक में भी ये एग्जांपल दी हुई है. सपोज इफ आई एम हैविंग अ कैंडल, ठीक है, एक हाथ कैंडल के ऊपर रखो, कीप वन हैंड ओवर हियर, कीप वन हैंड ओवर हियर. ये आपके दो हैंड्स है, एक इस जगह रखो, एक इस जगह रखो. कौन सी जगह पे, एट विच प्लेस यू विल फील द हीट ऑफ द कैंडल? दैट इज एट द अपर प्लेस. व्हाई? क्योंकि यहाँ से जो एयर पार्टिकल्स गर्म हुए वो ऊपर की तरफ गए, है ना, और यहाँ से तो एयर पार्टिकल्स, हॉटर एयर पार्टिकल्स यहाँ पे तो मूव नहीं किए. हाँ, ऊपर से जो टर्न होके आएंगे वो अलग चीज है. यहाँ से तो उल्टा जा रहे हैं, इस एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए जा रहे हैं ना ये सारी. और इन द सेम मैनर कन्वेक्शन और रेडिएशन में यही फर्क है. रेडिएशन जो है वो चारों तरफ इक्वली स्प्रेड होती है, लेकिन जो कन्वेक्शन है वो ऊपर वाली साइड पे ज्यादा होती है, बट साइडवेज जो होती है दैट इज वो कम होती है. हालांकि वो करंट को मूव करने में, एयर को मूव करने में हेल्प करती है. अब बताओ नहीं क्लियर हुआ तो? हाँ जी, तो शॉर्टली आपका आंसर दोनों में ही रेडिएशन आता है. हाँ जी, बेटे वो तो लैंड की हीटिंग और उस पर डिपेंड करता है. गर्मियों में जैसे लैंड जल्दी हीट हो जाती है, तो रादर कन्वेक्शनल करंट्स की कई बार स्पीड भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना. तो हाउ कैन बी डिसाइडेड इन विद इन अ टाइम पीरियड. हाँ जी, और कुछ? सो आई थिंक इट्स क्लियर फॉर ऑल. एक क्वेश्चन और है आपकी बुक में, व्हाई डू वी वियर हॉट और लाइट कलर क्लोथ्स इन समर एंड विंटर? सिंपल आंसर इज डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर. ठीक है, डार्क कलर क्लोथ्स. व्हाई डू वी वियर डार्क कलर इन विंटर? Because dark color is having the property that it absorbs heat. Light color reflects heat back. Light color reflects heat and keep you cool. ये एक प्रॉपर्टी है. इसी वजह से we prefer dark color clothes in winters. अभी विंटर्स स्टार्ट होंगे, आप देखना, आप सब जाओगे मार्केट तो यू विल लुक फॉर डार्क नेवी ब्लू, डार्क ग्रीन, ब्लैक, ऐसे कलर्स आप ज्यादा प्रेफर करोगे रादर देन लाइट पिंक, लाइट येलो. हाँ जी, जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं होता, और इवन इक्वल होने के बाद भी हीट ट्रांसफर होती रहती है दोनों की तरफ से. ठीक है, दैट इज समथिंग explained concept which will come forward. ठीक है, और बच्चे, एक तो डार्क कलर क्लोथ जो है वो हीट एब्जॉर्ब करता है, लाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है, और इसकी एग्जांपल आपकी बुक में है. अगर इन केस इन फॉर्म ऑफ एन एक्टिविटी आ गई, हाउ कैन यू शो दैट डार्क कलर एब्जॉर्ब्स हीट? So you will simply explain, take 2 bowls of water, one bowl is having dark black color, other bowl is of light color, keep both the bowls in the sunlight for 2 to 3 hours. We observe the bowl that is having dark color, its water gets more heated, उसकी हीट ज्यादा होगी. Why? Because dark color absorbs more. ठीक है, और इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन आता है, आपको स्टार्टिंग से करवाया हुआ है. Why we wear dark color clothes in winter? Because it absorbs heat and keep us warm. Why we wear light color clothes in summer? Because they reflect heat and keep us cool. Now next question is, why do we wear dark color woolen clothes in winter? ये आपका एक full fledged question आपकी बुक में दिया हुआ है at the last paragraph of this chapter. हाँ जी, absorbs that keep us that absorbs heat and they absorb sweats. एक मिनट बैठ जाओ. हाँ जी, हैज एयर कैविटी, और इससे क्या होता है?
and traps heat. और कोई पॉइंट? ये पॉइंट आएगा। हाँ जी बच्चे, प्लीज ये चीज ध्यान रखो। पहले तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डू वी वियर डार्क कलर वुलन क्लोथ्स? तो पहला पॉइंट तो डार्क कलर का लिखोगे। डार्क कलर एब्जॉर्ब्स हीट। वुलन क्लोथ्स तो एयर कैविटी होती है, ठीक है, मैं इरेज नहीं करूंगी। अदरवाइज ये लिखने से पहले वूल को लिखो। वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वूल इज अ पुअर, सॉरी, हीट, हम हीट का चैप्टर कर रहे हैं। सो वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ heat. So naturally do not allow body heat to pass out. आपकी बॉडी हीट को बाहर नहीं निकलने देता। सेकंड, आप लोगों ने बताया है wool is also having air cavities and this air cavities trap the air which is also a poor conductor of heat. एयर भी हमने किया ना, it is also a poor conductor of heat. तो naturally दोनों का आंसर कंबाइन कर जाएगा। तो दीज आर 1 to 3 पॉइंट्स। ये तीनों पॉइंट्स आपके एक्सप्लेन होने चाहिए। 2 या 3 नंबर में आएगा, बाकी मुझे नहीं पता क्या आएगा। 5 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। 5 मार्क्स में फिर 7th क्लास है बेटे, ये कौन सी 3rd 4th थोड़ी है जो ऐसे क्वेश्चन हम 5 मार्क्स में डालेंगे। बहुत कुछ है हमारे पास 5 मार्क्स के लिए। तो डिपेंड करता है आपका ग्रे कैसा, स्टील ग्रे है और डार्क स्टील ग्रे है या लाइट ग्रे है। अब ये जो सिल्वर टोन वाला ग्रे है तो ये लाइट में भी आ सकता है। इट डिपेंड्स। मैं क्या बोल रही हूँ, व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है ना? तो आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। बेटा ये चैप्टर जहां तक मुझे याद है आपकी बुक में इतना ही है, इससे ज्यादा डिटेल्स नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग द थर्मोमीटर, रिगार्डिंग mode of transfer of heat, you can ask. Otherwise let's continue our next chapter क्योंकि हमारे पास डेज काफी शॉर्ट है और रिवीजन काफी पेंडिंग है। हाँ जी सानिया। Ma'am, please tell what is the relation between the Celsius and Fahrenheit? Relationship between Celsius and Fahrenheit, बेटे सिंपल फॉर्मूला ये याद रखो, C/100 इक्वल टू F-32/180। ठीक है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट ओवर नंबर ऑफ डिविजन्स के साथ ये फॉर्मूला बना हुआ है। जो आपके 5/9 या 9/5 वाले फॉर्मूलाज हैं, अगर आप वो भी लिख के आओगे करेक्टली तो ठीक होंगे। ठीक है, लेकिन मैं वो भी सम्स इसी के थ्रू करती थी। ठीक है, मुझे वो फॉर्मूलाज कभी याद नहीं हुई, तो मैंने सिर्फ आपके लोअर मेल्टिंग पॉइंट और नंबर ऑफ डिविजन्स के साथ, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट बोल गई, लोअर जो लोअर पॉइंट होता है दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट और नंबर ऑफ डिविजन्स के साथ ये फॉर्मूला याद किया। हाँ मैं तो कह रही हूँ वो एज इट इज हो गया था ना, C-0/100 C/100 बन जाता है। बट एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना। मैं बाद में Yes, हाँ जी हिमांशी, आपको बाद में बताती हूँ बेटे। मैम प्लीज पेपर का पैटर्न बता दो। किसका? मैम पेपर का। पेपर का पैटर्न जो पिछली बार था, MCQs, then 2 marks question, then 3 marks question, then 5 marks question. It will be the same. मैम कितने मार्क्स के? 50 marks का। अनमोल? मैम 40 मार्क्स का आएगा पेपर। 50. ओके मैम। So I think the doubts are clear. Let us switch to the next chapter, that is reproduction. हमारे सब 2 चैप्टर्स पेंडिंग है, एक रिप्रोडक्शन और दूसरा है आपका मोशन एंड टाइम। ठीक है, मोशन एंड टाइम में तो न्यूमेरिकल्स थोड़े से आई विल सर्च एंड वी विल प्रैक्टिस फॉर दैट। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद लेसन नंबर 12,
reproduction in plants. हाँ जी बच्चे, what is given in this chapter? Let's first take a brief review. In short, हमने इस चैप्टर में किया क्या? What is reproduction? Reproduction का मतलब होता है producing the young ones of same type. ठीक है? अब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन इट जनरली टेक्स प्लेस बाय टू टाइप्स. First mode of reproduction is asexual and other mode we call it as sexual reproduction. Right? और इसके differences मुझे लगता है हम लोगों ने बहुत अच्छे से किए हुए हैं. Asexual, it is a mode of reproduction in which only one parent is involved. इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स होते हैं. It is a mode of reproduction in which two parents are involved. और जब हम sexual reproduction की बात करते हैं, तो naturally we will talk about the reproductive part of the plant, that is flower. ठीक है? फ्लावर को हम इन डिटेल स्टडी करते हैं रिप्रोडक्शन में, राइट? बट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमारे पास 3 to 4 वेज है रिप्रोडक्शन के, आउट ऑफ विच जैसे एक है बडिंग, दूसरा है और कौन सा था? फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, लास्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. अब बच्चे आपने इसमें पढ़ना क्या है? द डिफरेंट मेथड्स, इनके मीनिंग्स, राइट? डायग्राम्स जिनके हैं, लाइक 1 to 3 इन तीनों के डायग्राम्स हैं. ठीक है? और क्या था? हाँ, इनका मीनिंग, इनके डायग्राम्स, उसके पार्ट्स और उसके एक्सप्लेनेशन. ठीक है? और इसमें एक चीज और होती है. चलो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल्स फर्स्ट. ठीक है? बडिंग में हमने कौन से ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल पढ़ी है? यीस्ट. फ्रेगमेंटेशन में वेरी गुड. ठीक है? बोलते बोलते ही अटक जाओ. एक मिनट. हाँ जी बोलो, क्या डाउट है? नहीं तो ओके फाइन. ठीक है? स्पोर फॉर्मेशन में क्या पढ़ा है? ब्रेड मोल्ड. इसके अलावा फर्न्स और मॉसेस भी थोड़ा सा हमने हिंट किया था. ठीक है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में रोज की है, पोटैटो की है. यही दो की है कि और भी कोई की है? ब्रायोफिल्म का नाम आपको बताया था, वो लीव्स और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के साथ एग्जांपल्स करेंगे. ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट, बडिंग. हाँ जी, व्हाट इज बडिंग? अगर सिंपल सा क्वेश्चन आपको आ जाए, व्हाट इज बडिंग, व्हाट विल यू राइट? And who will draw the diagram? आता है? अच्छा. yeast, एक मिनट. अगर नहीं आता तो आई डोंट थिंक यू हैव द राइट टू लाफ.
That's correct according to you. ठीक है. Anyhow बेटे, this is the main cell of the yeast. Otherwise आपका डायग्राम बिल्कुल ठीक है बडिंग का, बट जो मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था, तो that was in the form of arrow. ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए. This is suppose the structure of yeast, that is a single cellular organism. ठीक है, ये भी आपको बताया था. It normally takes place in unicellular organism. This was yeast. ये आपका yeast है. What happens on maturity? This yeast starts developing a structure which is called as bud on its upper part. ऐसे ही होता है. ठीक है, और साथ ही साथ उसका न्यूक्लियस भी ब्रेक हो जाता है. खैर वो हमारी डिटेल्स इतनी नहीं है. ठीक है, एंड अल्टीमेटली you will found a structure like this. If proper conditions are supplied to this, अगर उसको proper growth conditions मिलती हैं, proper temperature, proper water, proper nutrients मिलते हैं, then this process is so fast that even this birds get developed more birds before being detached to the main parent. ठीक है, ये it can either grow in this manner, like एक ये और ये, or it will either grow in this manner as you have drawn. ठीक है, इस manner में भी draw हो जाता है. It can also form a chain of birds. ये था. हाँ जी, कुछ और? अब बताओ किसी को क्लियर नहीं हुआ तो. ठीक है बच्चे, तो सिर्फ उतना सा डायग्राम बनाने की. हाँ जी बच्चे, हरमन क्लियर हो गया? आना हमने यही है, बट वी शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस. हाँ, आपने पूरा प्रोसेस है एक्सप्लेन करना है. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ द सेल टेक्स प्लेस, या जिसको आप सिंपली बडिंग लिखते हो. ठीक है, यहाँ पे बड फॉर्मेशन लिख सकते हो. बड फॉर्मेशन हो रही है, एंड व्हाट हैपेंस हियर, बड फॉर्म. दिस इज अ बड, सेपरेट बड. पेरेंट सेल, तो ये आपका पेरेंट सेल, डॉटर सेल, दे आर डिटैच्ड. दिस इज डॉटर सेल and they are detached from each other. However, in this case, it forms a chain of buds. क्लियर है? और ये लेबलिंग थी. लेबलिंग में है क्या? कुछ और एक आधा वर्ड किया हुआ है, कुछ और लेबल? हाँ, यहाँ पे लिख लो एक डिटैच्ड. फर्स्ट वाले में डिटैच्ड हो गया और सेकंड में कंबाइंड है. इट फॉर्म्स अ चेन ऑफ बर्ड्स. ठीक है, दैट इज बडिंग. गुनीत मैम, डॉटर सेल आपने पहले नहीं करवाया था शायद? नहीं करवाया. ये डिटैच्ड सेल्स लिख लो. अगर नहीं करवाया आप कर सकते हो, वो भी ठीक है. दोनों तरह से ठीक है बच्चे. अगर आप इसको पेरेंट सेल, डॉटर सेल मेंशन करते हो, या डिटैच्ड सेल्स करते हो, सेपरेटेड सेल्स लिखते हो, वो भी ठीक है. हाँ जी बोलो. एनी अदर डाउट? सो दैट इज अबाउट बडिंग. बेटे बडिंग अगर आपको आता है एक्सप्लेन बडिंग, तो 2, 3, 5 जितने नंबर में भी आता है. नेचुरली ये डायग्राम देख के यू कैन इजीली गेस ये डायग्राम 1 या 2 नंबर से ज्यादा का नहीं है. ठीक है, पर वो भी तभी 1-2 नंबर आपको देने के लिए हम जस्टिफाई कर सकते हैं अगर आपने एटलीस्ट उसको इतना तो ड्रॉ करो. राइट. और सेकेंडली एक्सप्लेन में सबसे पहले तो बडिंग. बडिंग इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ये लाइन से आपने स्टार्ट करना है. कोई भी मेथड है उसको लिखना है कि ये किस लिए होता है. दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ठीक है, in or mostly takes place in unicellular organisms. The organisms on maturity, they start forming buds on its surface,
and this bud, when it completely forms, it gets detached from the parent's body. If the conditions are appropriate, if proper nutrients are supplied to this organism, then this organism, then this process of budding is so fast that even chains of buds are formed. Means the daughter cells, they are start forming new cells before being detached to the parent's body, right? And what is the main use of this yeast? यूज भी आ सकता है yeast का, है बुक में? yeast कहाँ यूज होता है? It is used in bakings, in formation of alcohols also, ठीक है, wines etc की formation में. हाँ जी, ठीक है, for making wines और even baking में बहुत ज्यादा यूज होता है. अगर आप यीस्ट को स्टडी करना चाहते हो ना, आप देखना चाहते हो माइक्रोस्कोप के अंदर कि सच में ही ऐसा कुछ है, तो आप किसी भी बेकिंग शॉप पे चले जाना, उससे यीस्ट मांगना, छोटे छोटे येलो कलर के ना आपको वो देगा, क्या कहते हैं उसको, बहुत बारीक बारीक येलो कलर के पाउडर की तरह होते हैं. पाउडर नहीं होता, बट दे आर क्रिस्टल्स, और एक्चुअली दे आर यीस्ट पार्टिकल्स. आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे ना, यू विल फाउंड कि कुछ में बर्ड्स होती हैं, ठीक है. और बेकिंग में भी इसी तरह से यूज होता है. वो क्या करते हैं, जो भी मटेरियल आपका होता है उसमें इसको डाल के थोड़े टाइम के लिए रख देते हैं, एंड इट विल ग्रो वेरी फास्ट, ठीक है. और बच्चे, आई थिंक बडिंग इज क्लियर. सेकेंड प्रोसेस कौन सा है? डायग्राम जो आता है वो बताओ. चलो, सेकेंड फ्रेगमेंटेशन. एक मिनट. फ्रेगमेंटेशन शाबाश, वेरी गुड. फ्रेगमेंटेशन, हाँ जी बच्चे, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? अब गुड, एक मिनट. हाँ जी दृष्टि. Yes, ma'am. Fragmentation is the asexual mode of reproduction in which breaking up of body of an organism into two or more fragments, where each fragment grows and matures to form a new organism. Example, Spirogyra, and it is a very fast process also. हाँ जी बच्चे. हिमालय, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? चलो कल करें, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे.